آج میں شوپیان کے سائٹ پہ ہوں. ایک جو بڑی والی سائٹ میری ہے وہ الگ ہے. دوسرا ایک سائٹ مجھے آئی تھی اس کے ہی کولیگ کی. یہاں پہ آج ہمیں ٹینکی باندھنے کا ہے. ایک باتھ روم کا کام تھا. ہاں استاد جی. اب ہم نے یہاں پہ کارپینٹر کی ضرورت پڑی کیونکہ ویلڈنگ والا سٹینڈ, لوہے والا سٹینڈ تو ہم یہاں پہ لا نہیں سکتے ہیں. تو ہم نے اپروچ کیا, مالک کے پاس لکڑی تھی تو میں نے بولا آپ کارپینٹر کو لاؤ اور ہم کارپینٹر سے ہی بنوا کے لے لیں گے. ہے نا استاد؟ جی جی. تو استاد جی اب ہمارے پاس آئے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جاوید احمد ہے. جاوید احمد. آپ شوپیان کا ہی ہے نا؟ جی سر. اچھا یہ بتاؤ, ٹینکی کے لیے سٹینڈ کتنا ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم نیچے ٹینکی رکھتے ہیں, کبھی کبھار اس کو نیچے پانی جاتا ہے, یہ پھر یہ خراب ہو جاتی ہے, پھر سراخ ہو جاتے ہیں. پھر مالک کو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد واپس چینج کرنا پڑتی ہے. اس میں مالک کا نقصان ہے. اگر مالک سٹینڈ بنائے, مالک سمجھدار ہو, مالک سٹینڈ بنائے تو مالک کا فائدہ ہے. مالک کے پیسے بچتے ہیں. ایسے سٹینڈ بنانے سے مالک بچتا ہے کیونکہ اس کی چیز ایک سیف جگہ پہ ہو جاتی ہے. تو آج کل کیسے دیکھو کہ آج کہیں پہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بناؤ ایسے لگاؤ ٹینکی تو چلتا ہے. 2 سال کے بعد بولتے ہیں کہ یار کیا ٹینکی آپ نے خراب. شوپیان کے اندر جتنے گھر کو چھت کیا ہے, آپ کی ٹیم کے ساتھ, جس ٹیم کے ساتھ ہے, ان لوگوں نے کیا یا آپ نے کیا؟ تو کتنے کسٹمروں نے آج تک کہا کہ تھینک یو کے لیے چھت دے دو, مگر سٹینڈ؟ مجھے لگ پڑا تھا کہ یہ پہلا بندہ مجھے ملا ہے جس کے گھر میں آج آیا ہوں. تو اس نے بولا مجھے سٹینڈ بنانا ہے. میں نے بولا شاید یہ سٹینڈ ایسا نارمل سٹینڈ بنائے گا. تو ہاں, اور ایک جگہ پہ ہم نے سٹینڈ بنایا تھا ٹینکی کا. تو اس کو بڑی والی ٹینکی تھی تو اس کا ہم نے بنایا 7 بائی فٹ کا. تو اس نے اچھا, جتنا 1 فٹ ہائٹ دی. اس کو ہم نے 1 فٹ دی. وہ 1 فٹ ہائٹ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو یہ بندہ ہے یہ بولتا ہے کہ کم سے کم میری اس کی ہائٹ ہونی چاہیے کم سے کم 3 فٹ, پونے 3 فٹ میری اس کی ہائٹ ہونی چاہیے. ٹاپ سائڈ 3 فٹ. 3 فٹ ہونی چاہیے. ہاں. تو میرے خیال سے جو وہاں کے یہ ہمارے باشندے یہاں کے رہنے والے ہیں, ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اپنی چیز بچانی ہے تو سٹینڈ بنائیں, ٹینکی کے لیے سٹینڈ بنائیں. اور پہلے تو پلمبر جو بنتے ہیں, جن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, جن کو پہچانتے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹینڈ کتنا ضروری ہے سینٹیکس کے لیے. سٹینڈ سے کیا فائدہ ہے نا؟ جی ہاں. اگر ہم کسٹمر کو سمجھائیں گے صحیح سے کہ اگر آپ سٹینڈ بناؤ گے, جگہ ہمیں اچھی سے دو گے, تو کل کو فیوچر کیسا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پلمبر کے کہنے پہ کسٹمر مانتا ہے؟ ہاں, اگر سمجھدار ہو تو کیوں نہیں مانے گا. میکسیمم پلمبرس ایسے کہتے ہیں کہ ہماری بات کسٹمر نہیں مانتا ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. اچھا. یہ غلط بات ہے کیونکہ کاریگر, کوئی بھی کاریگر ہو, وہ اپنے کاریگر کو کبھی لات نہیں مارے گا. کیوں, اس کی روزی روٹی وہی کاریگری اس کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم ہاتھ میں اٹھائیں نہیں, گے, پلمبر کہتا ہے کہ کسٹمر ہماری بات نہیں مانتا ہے. وہی ہے نا, وہ تو کمزوری پھر کسٹمر کی ہوگی ہے نا. پلمبر جو ہوتا ہے, جو کاریگر ہوتا ہے, اس کی غلطی نہیں. وہ پلمبر کی کمزوری یا کسٹمر کی وہ کمزوری؟ کسٹمر کی کمزوری ہے. نہ, ہاں, جب پلمبر اس کو بولے گا سنو سر ایک منٹ. کسٹمر کو موٹیویٹ کرنا ہے. یہاں پہ جہاں پہ میں ہوں, اس کسٹمر نے بھی نہیں مانا. اس نے بھی نہیں مانا تھا سٹینڈ کے لیے. ہال خراب ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, لیکن اس کو منوانا پڑا. میں نے بولا اگر آپ سٹینڈ نہیں دو گے میں کام نہیں کروں گا. ٹھیک, یہ آپ نے تو اچھا کیا. ہے نا؟ یہ آپ نے اچھا کیا کیونکہ اپنا دیکھو, مجھے پتا ہے کہ میرا برانڈ ویلیو جو ہے مارکیٹ کے اندر, مجھے اس کو گھٹانا نہیں ہے. ہاں, کیونکہ آپ نے فیلڈ بنانی ہے, اپنا دکھانا ہے اپنا آپ کہ میں کوئی چیز ہوں, میں کسی چیز کی ہستی ہوں. میں جو کام کر سکتا ہوں, میرا کام پراپر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ مجھے جانتے ہیں اس سے پہلے؟ نہیں, میں نہیں جانتا ہوں آپ کو. کفایت جعفری نام سنا ہے؟ ہاں, نام تو نہیں, لگ بھگ اندازہ لگتا ہے نہیں, میں نے سنا نہیں, نام نہیں سنا ہوگا. ہاں, ایسے مطلب کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ویڈیو میں نے پہلے کم سے کم, یہ مجھے یاد نہیں ہے, مگر میں نے آپ کا ویڈیو فیس بک میں دیکھا تھا. دیکھا ہے. لگ بھگ میرا اندازہ یہی کہتا ہے, میں نے دیکھا ہے. اچھا. ویسے تو آپ کو میں نہیں جانتا ہوں. تو آپ سر بولتے ہو ہم کہاں کرنے والے, بڑگام کے. بڑگام کے. تو بڑگام تو یہاں سے بہت دور پڑتا ہے. نام سنا ہے تو کبھی ہم گئے ادھر نہیں. کفایت جعفری نام نہیں سنا ہے یا سنا ہے؟ میں نے کہا لگا میں نے فیس بک پہ, یار میں نے شاید آپ کا کوئی ویڈیو دیکھا ہوگا, تو وہ میں تھوڑا ذہن میں میرے کو ہے, مگر ایسے میں آپ کو نہیں جانتا ہوں. چلو انشاءاللہ آج تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ نمبر بھی لیں گے, بات بھی کریں گے انشاءاللہ. تو ہو سکے یہاں پہ میرے پاس کوئی کام بھی, بڑا کام آئے تو میں انشاءاللہ میں آپ کو بھائی صاحب میں ایسا کام نہیں کرتا ہوں. میں اپنا کام اپنا آفس سے لیتا ہوں. میں ایسے کسی کے ریکمنڈیشن پہ نہیں جاتا ہوں. ہاں سر, اگر دیکھو بس میں اگر آفس سے لے تو ہم بھی آپ اپنے آفس والے کا فون نمبر دے دیتے, کانٹیکٹ ہم اس کریں گے. تو ہم اس سے بولیں گے بھائی ہمیں یہ بندہ بھیج دو, یہ بڑھیا بندہ ہے, کام کرنے والا, جاننے والا بھی ہے, کاریگر بھی ہے, تو ہم آپ کو لا سکتے ہیں.
वही मैं कह रहा हूँ, कहीं कहीं कस्टमर को समझाने का हमें, अगर हम कस्टमर को समझा लेंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है आपसे और आगे क्या होगा, तो कस्टमर समझ गया ना। समझे क्यों नहीं जैसे समझे? मैंने यहाँ पे इसको समझाया कि इसने क्यों हाँ, समझा जैसे फिर, ये भाई समझ गए तो इंशाल्लाह बाकी के कस्टमर समझ जाएंगे। है ना। हम्म। यानी कहते हैं कि नहीं नहीं, आज तक देखो, लास्ट में हमें एक चीज़ पता चला, आज तक इस बाइक का ये दूसरा स्टैंड है और पहला स्टैंड है जिसकी 3 फीट की हाइट देनी है। हाँ ये मेरा दूसरा स्टैंड है जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3 फीट। देखो, मैं इससे कम पहले से कम, इससे मैं अपनी बात करूँ तो हम कम से कम 3 फीट की साइड हाइट देते हैं। अगर हमें मैनुअल में फिटिंग रखना है तो डायमीटर बढ़ाना है, तब भी हमें 3-4 फीट की स्टैंड की हाइट ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसके अलावा अब जो हमारे प्लम्बर्स इनलेट पंप लगाते हैं फिर टैंकियों के वहाँ पे इनलाइन पंप, तो इनलाइन पंप को भी लिखा हुआ होता है कि कम से कम 2 मीटर के नीचे, ये टैंकी से नीचे 2 मीटर पे लगा दो, यानी कि उस पंप से ऊपर हमें 2 मीटर की टैंकी होनी चाहिए, यानी 7 फीट की हाइट कम से कम होना चाहिए, तब जाके हमें प्रेशर पंप भी काम आएगा। अब उस काम का क्या होगा, जिस काम के सीधे स्लैब पे ही टैंकी होगी, तो उसका उसमें क्या देखो होगा। सर एक बात मैं और भी बताऊंगा कि अगर हम स्लेब पे हम टैंकी रखते हैं तो पानी कम से कम 3 फुट नीचे रहता है तो पानी खत्म होता है, पानी खत्म हो गया। जो 3 फुट है वो पानी ऐसे जम के रहता है, फिर वो पानी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। फिर वो पानी वैसे रहता है, फिर उसके ऊपर हम और पानी उसमें भरते हैं, फिर वो हम यूज़ करते हैं। जो टैंकी कम से आपका क्या कहना है अब लोगों के लिए, व्हाट शुड दे डू, उनको क्या करना चाहिए। उनको बस मेरा यही है कि आप अपने के लिए, अपने बचाव के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपने समझो पैसे बचाने के लिए आप स्टैंड बनाइए। स्टैंड बहुत बढ़िया चीज़ है, परफेक्ट रहता है, हाँ ज़रूरी भी है, उससे आपको फ़ायदा भी मिलता है कि आपका नुकसान उसमें नहीं होगा। अरे ये जहाँ पे भी टैंकी लगाते हैं, एग्जॉस्ट इसका कभी निकाला है आपने, देखा किसी जगह पे एग्जॉस्ट निकालते हैं। झूठ की बोलो मैंने नहीं दिखाया तक, नहीं देखा। क्योंकि ये तो होता है प्लम्बर का काम, बस हमारा काम यही है मकान बनाना, छत करना, तो मालिक को हवाले कर देना, बाकी जाने मालिक, जाने उसका काम। मगर असल में काम आप ही लोग बिगाड़ते हो ना। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मालिक को ऐसा हाल दिखाते हो, क्योंकि मालिक टैंकी के लिए, आप लोग टैंकी के लिए जगह क्यों नहीं छोड़ते हो? हाँ क्यों नहीं छोड़ते हैं? कहाँ रखते नहीं यार, हर जगह पे। कहाँ? ये ऐसा मत बोलो सर, ऐसा मत यहाँ बोलो। पे कहाँ पे रखा ये अब इसको छत देखो, पहले पहले इसका छत जो है, इसका वन टैंकी के लिए ए जगह टू, यहाँ पे दिखा दो मुझे पहले, आपने कहाँ से रखा है। इसको तो जगह नहीं है, इसको इसको पूरा हार खुला पड़ा हुआ है। इसके टैंकी के लिए लिए जगह, पर्टिकुलर जगह दिखा दो ना मुझे। नहीं, उसके लिए तो नहीं है ना जगह। बात सुनो ना, ये तो पूरा हाल है। ये तो कैसे कि ये जो पाशा है हमने 2 साइड निकाला है, क्योंकि भाई को कभी याद होगा या नहीं होगा, जब इस वक्त में चुनाई कर रहा था तो ऐसा एक रेत का कतरा, रेत कितना होता है, मसाला कितना होता है, वो गया तो ये यार मारने आ गए थे यार। पूछो बंदा मुंह पे ही है यार, ऐसी बात नहीं, इससे डरते थे कौन इसको। मारने आया ये? नहीं यार उसको पूछो। तो कहीं ना कहीं कारपेंटर से भी गलती होती है कि कस्टमर को नहीं बोलते कि टैंकी कहाँ पे कहते रखा है। हैं गलती किससे नहीं होती है। नहीं, कारपेंटर को ये चीज़ जहन में पहले ही रहना चाहिए, छत स्टार्ट करने से पहले, कि टैंकियों के लिए टैंकी जगह जगह रखनी है, हाँ हाँ? हाँ। जितने भी कारपेंटर इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या बोलोगे आप, अपनी ज़बान से बोलो, अपने, क्योंकि देखो वो आपकी कम्युनिटी है। नहीं नहीं, बात सुनो, मैं opposite community में हूँ। मैं उनसे ये बोलता हूँ कि आप एक काम कीजिए कि जब भी हम किसी मकान का छत करते हैं तो उसमें देखो, कस्टमर को रखते हैं साइड में। तो उस वक्त यही देखो सोच, कस्टमर को रखो साइड में। आप हमसे पहले आते हैं बहुत सारी जगहों पे, आते हैं ना, छत बना के होते हैं, उसके बाद प्लम्बर, कस्टमर को याद पड़ता है अब प्लम्बर लाना है, नेट वहाँ पे टैंकी पहुँचा के होती है, टैंकी ऊपर नहीं होती है पहुँचा के, आप लोगों ने टीन वगैरह सारा करके रखते होते हैं। हाँ, तो इस केस में जिम्मेदार कौन है? आप लोग गलती करते हो ना ये चीज़। ये नहीं सर, आप हमें मत, ये हमारे पास उंगली मत उठाइए सर, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि ये मालिक की एक चॉइस भी होती है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, बोलना नहीं नहीं, हक। बोलना तो बात सुनो, हम तो बोलते रहते हैं। हमने जब इसका मकान का, इस बाइक का हमने ये एक दूसरी मंजिल किया, दूसरी मंजिल के बाद इसका नीचे ऊपर बैठ के जब छत किया, तो हम भाई को बार बार पूछते रहे, भाई कोई क्या करना है, कैसे करना है। भाई ने तो जो ये गाबल हमने ये उठाई है, भाई ने इनकार करके ये गाबल नहीं उठानी है, तो हमने खुद उठाई है। अच्छा, केबल का क्या काम होता है छत में? यार सजावट की आती है। सजावट क्यों होती है? और क्या, शो बनती है, शो बनते हैं हाँ। कंफर्म। आप लोग लिखना, क्या गेबल का काम सिर्फ शो बनने का है या कुछ और काम है? हाँ, क्यों नहीं है, मतलब लाइट भी आती है उसके साथ, क्यों नहीं आती है, ऐसा मत बोलो। एक शो, दूसरा लाइट, लाइट और भी आती है। तीसरा क्या बताऊँ मैं आपको। असली मेन जो है ना, मेन इसमें देखो, अगर हमें 20 फीट की छत है ना, 20 फीट की छत में से आपको 6 फीट कम से कम गेबल उठानी है। 20 फीट की छत के सेंटर में आपको 6 फीट की गेबल उठानी है। इतना बड़ा ग्लास रूम बनाया, वो किस लिए बनाया हमने? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो,
चलो यहाँ पे छोड़ो, 20 फीट की छत अगर होगा ना, उसमें 6 फीट की गेबल उठाना किसी भी केस में ज़रूरी है, ख़ास तौर पे शोपियान जैसे इलाकों के अंदर। क्यों? क्या बताऊँ आपने इसको? आप क्या बताऊँ, बोलो। कारपेंटर आप है। बात लो, पर चाय पीने मेरे को। नहीं, चाय भी फेंकी, ये तो फ्रेंडली है, देखो हम थोड़ी लड़ाई करते हैं। नहीं, ये आपको आप मुझे फ़ोन नंबर दे देना, तो मैं फ़ोन चालू रखूँ तो आप करूँगा, उसको मैं बोलूँगा। नहीं, उसमें तो बात नहीं होगी ना, यही पे देखो, ये देखो बात- आप उस्ताद से पूछ के आओगे। मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, आप मेरे भाई हैं, आप जैसे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो कारपेंटर्स के साथ काम करते होंगे, अब सीखना है ना, जिंदगी सीखने की। गेबल का काम होता है छत को लोड डिस्ट्रीब्यूट करना। लोड कब आता है इस पे? जब बर्फ पड़ेगा, लोड गिरा ऊपर, गिरा ना वर्टिकल लोड, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होता है? गेबल के वहाँ से। इसलिए गेबल, उन केसों में गेबल का काम होता है, गेबल उठाना इसलिए ज़रूरी है। देखो सर, मैं आपसे एक बात बोलूँगा, अब आपने बोला, अब बोलूँगा। आजकल के ज़माने में ज़माना तो वही है, तो इंसान बदल चुके हैं, इंसान बदल चुके हैं। आज हर चीज़ का एक फैशन बन चुका है। हमारे जो पुराने थे वो बेचारे क्या कहते हैं, मिट्टी में मकान बनाते थे, मिट्टी में उन्होंने मकान बनाया भी, मिट्टी से वो बने भी और मिट्टी में वो चले भी गए। कहते हैं कि रहने वाली यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अब है किसी से हम मानी करते हैं। नहीं, फैशन के साथ हमें लेना देना नहीं। देखो मेरे पास, आप शोपियान में काम करते हैं ज़्यादा, हो सकता है कल को आपको किसी और जगह से काम आई और वहाँ पे आपको कस्टमर एक एक चीज़ पूछेगा। ये कील, जो वो थ्रेड वाला कील होता है ना, चाइनीज़ कील जो आजकल लगाते हैं हम, नहीं, वो जो थ्रेड वाला कील होता है, एक होता है नॉर्मल कील, ये वाला कील, और दूसरा होता है वो दूसरा कील, वो यहाँ पे नहीं होगा शायद। अच्छा, हाँ, सीमेंट वाला कील नहीं, दूसरा। अच्छा, इस कील को यहाँ पे ये जो दारे होते हैं ना, थ्रेड्स होते हैं, इसका क्या काम है? इतना तो आप क्या बताऊँ, आप जो पूछ रहे हो इतना तो मत करो मेरे को चार्ज, कि मेरे को काम भी करना है। नहीं, काम कर दो ना, अब दाढ़ी तो मैं दिला दूंगा, वो टेंशन नहीं है। दाढ़ी दिलाना मेरा काम है। अब इतना क्या काम है ये क्यों है इसमें? अब क्या बता सकता हूँ मैं इसके बारे में? लॉक नहीं है, ये लॉक नहीं कर सकता है। कहते हैं कि जब टूट, नहीं, किसने बोला आपको? मैं बताऊँगा। कहते हैं कि 3 इंच का कील इकल पे 10 बंदूक की ताकत पकड़ता है। सुना है आपने? मगर टर्म्स एंड कंडीशन, अगर इस तरीके से हम लगा लेंगे तो 10 बंदूक का होगा, इस तरीके से लगा लेंगे तो 10 किलो का भी नहीं होगा। 10 किलो, हम वो बात करें तो जो आपने इसके बारे में बोला, क्या क्या ये लॉक होता है, क्या होता है, ये वही जानते हैं। तो हमारा काम है, जिसे बनाया, तो हाँ, हमारा काम है खाली इसको क्या करो, लकड़ी में लगाना, ठोको और बंद कर दो, बस। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। कहीं पे हम कील ऐसे ठोकते हैं, ऐसे ठोकते हैं, कहीं पे हम ऐसे ठोकते हैं, कहीं पे हम सीधे ठोकते हैं। अगर हमें, नहीं, सीट में चलाओ, एक मिनट, अगर ऐसे कील ठोका ना हमने छत पे या किसी एक जगह पे, लोड ये हमें वर्टिकल लोड रखना है इस पे, यानी कि हमें इस पे कुछ हैंग रखना है, तो वो हमें इसमें ज़्यादा ताकत पकड़ेगा या इस शेप में ताकत पकड़ेगा ज़्यादा? वो खड़े में जैसे इस शेप में ताकत पकड़ेगा ज़्यादा, पकड़ेगा ना। तो हर एक चीज़ का लॉजिक होता है, हर चीज़ का लॉजिक है। देखो, मैं अगर प्लम्बर हूँ, मुझे बोलो आप किसी भी एक चीज़ को लेके, मैं बोलूँगा ये काम कैसे करेगा, सही है, गलत है, कंपनी कहीं पे फॉल्ट हो सकता है, कंपनी ख़राब कर सकती है चीज़ को, क्योंकि वो भी इंसान ही है, बनाने वाले भी तो इंसान ही है ना, हम भी इंसान ही है। तो हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि इंसान, मैं यही बार मैंने पहले बोला कि इंसान माँ के शिकन में सीखे कभी नहीं आता है। जब इंसान, दूसरा चीज़, आप दोस्त है अपना, वहाँ पे अपने विंडोज़ लगाई हैं, खिड़कियाँ लगाई हैं, ठीक है ना, लगाई है ना खिड़की, 3 शेप में हमने खिड़की लगाई है वहाँ पे, ठीक। चाहे ये किसने ऑर्डर दिया है, इंजीनियर ने या खुद बनाई हुई है? उस वक्त जब ये खिड़की लगे थे, उस वक्त मैं यहाँ पे इसके छत तब मैं आया था यहाँ पे। डिज़ाइन किसने दिया खिड़कियों का? इंजीनियर ने दिया। इंजीनियर ने ये डिज़ाइन क्यों दिया इस छत को? ये मुझे पता नहीं, इसी को पता होगा सर, क्योंकि जब ये लगा चुके थे तो तब मैं छत के काम पे इसके आया था, चला के काम पे मैंने खाली किया। ठीक है, ये लगा चुके हैं, हो सकता है कहीं पे आप पे कस्टमर छोड़ेगा। आपका नाम क्या है? जावेद साहब, मुझे इसके लिए खिड़की कौन सी लगानी है, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, तो आप वहाँ पे
कौन सा डिज़ाइन प्रोवाइड करोगे? जितने जो चॉइस होगी अपनी, ऐसे मत बोलो आप, ऐसे मत इसमें बोलो। तो choice वाली बात है चॉइस नहीं, है नहीं, choice क्यों से नहीं, काम देखो नहीं नहीं, चलेगा। क्योंकि आप देखो वैसे जैसे ये इंजीनियर ने इसको बोला था तो इसने वैसे ही बनाई है। नहीं नहीं, वहाँ पे चॉइस वाली बात नहीं चलेगी। मैं समझ गया तेरी बात, तो क्या कहना चाहता है, आप छोड़ो। तो यह ग्लास कॉर्नर जो आपने बनाया है, ग्लास कॉर्नर है ना, वहाँ पे गेबल क्यों उठाई है? अगर हम ग्लास कॉर्नर को उठाएंगे फिर ऊपर से पूरा छत दे देंगे, क्या ये कामयाब रहेगा या टूट जाएगा? ये कैसे रहेगा? जो ये ग्लास रूम बना है ये किस लिए होता है? ये तो वहाँ पे बैठने के लिए, बालकनी बैठने के लिए, वो बैठने के लिए, लाइट के लिए भी होता है। मगर इसमें भी कमी है लॉजिकली, अगर इंजीनियरिंग के तरीके से हम समझेंगे ना इसको, इसमें भी ये भी गलत है। और ये मगर सवाल वो है जो वहाँ पे एक कोनेदार खिड़कियाँ बनाई है ना रेक्टेंगल है, ये वहाँ पे वी शेप का है ना, तो ये बनाना क्यों जरूरी है? ये अच्छा रहता है, सजावट होती है इसके साथ। और क्या सर, इसमें भी जब ऊपर छत पे लोड पड़ेगा ना बर्फ का या छत का तो लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जी आइए समझ। अगर हम वहाँ पे फ्लैट बनाएंगे, वो टूट जाएगा। सही बात है। एक तो छत टूट जाएगा, दूसरा खिड़की टूट जाएगी। चलो यार देखेंगे बाद में, जब ये टूटने वाली। आपको रबना जो नहीं, मैं भी कह रहा हूँ, चाहे इंजीनियर डिज़ाइन करे या खुद हम डिज़ाइन दें, तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिज़ाइन हम क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक मैं क्या आपसे है। एक बात एक बोल रहा हूँ, हम जिसके साथ काम करते हैं हम इंजीनियर उसके मुकाबले नहीं लेते हैं। जो मेरा उस्ताद है फ़ारूक निजार, बटपुरा का रहने वाला है, पहले तो वो बोनगा में रहता था, आज वो बटपुरा रहता है। अब मैं आपसे बोलूँ, हम इंजीनियर भी उसके मुकाबले नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई को उसको माइंड का पता होगा। वो जो बोलता है इंजीनियर, जब वो काम पे होता है तो इंजीनियर वहाँ पे नहीं आता है। रियलिटी में मैं सुना रहा हूँ। हाँ, आप तो हम उसके साथ चलते हैं, कहते हैं कि जैसा बाप होगा वैसा बेटा कभी होगा नहीं। ये तो आपने सुनी होगी, ये कहावत भी है। अच्छा, ये वीडियो में अपलोड करूँ? ये बस मेरे को शेयर करते ना, नंबर देना मेरे को शेयर करना बस। नहीं, वीडियो में अपलोड करता हूँ सोशल मीडिया पे। इसमें कर दो, कोई टेंशन नहीं यार। कल को गाली नहीं देना मुझे। मेरे बारे में उल्टा नहीं बोला, बस मैंने उल्टा नहीं, जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया यही चढ़ेगा। यार कोई बात गाली क्यों तुम? नहीं, कल बोलोगे कि देखो किफ़ायत जाफरी के चैनल पे चढ़ना, इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो देखते हैं बातों को। छोड़िए, इजाजत जरूरी है। चलो कोई बात, जैसे टेंशन मुझे क्या। फिर जो होगा देखा जाएगा। देखा जाए यार, कहते हैं जब वक्त आने पे इंसान कुछ भी कर सकता है। देखो वक्त आने पे, मैंने यही बोला, मैंने पहले बोला कि जो हमारा उस्ताद है अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, उसको भी उसके अयाल को भी अल्लाह। लेकिन उस्ताद भी फर्ज बनता है एक एक चीज समझाना। देखो अगर आप लोग देखो मेरे पास, एक मिनट, असल में हमारी खुद की कमज़ोरी है। देखो सर, उस्ताद कभी साथ नहीं रहता है, सुनो मेरी बात नहीं, हमारी खुद की कमज़ोरी है। हमारी खुद की कमज़ोरी यह है कि जो हमारा उस्ताद है हमारे समझाता है, मगर लेकिन हम साले लड़कियों के पीछे, रियलिटी सुनो, फ़ोन के पीछे, सिगरेट के पीछे हम घूमते रहे, हम उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। तो इसलिए हमारी ये जो दिमाग है, ये दिमाग की बात नहीं रहती है, तो जहाँ पे हम गलत करते हैं वहाँ पे गलत हो ही जाता है। बात में हमें तो खाना पड़ती है। उस्ताद को हक बनता है, अगर मेरे साथ में हमारा लड़के रहते हैं जो ना, उस्ताद मेरी बात है- सुनो, मेरे साथ में जो लड़के लोग रहते हैं ना, मैं इनको पढ़ाता हूँ एक एक चीज़। सिखाने का काम मतलब ये नहीं है कि आपको कील सिखाना, ठोकना है, छत बनाना सीखना है। छत हम इस डिज़ाइन में क्या फ़ायदा है कस्टमर को, आपको ये भी पता होना चाहिए। इस विंडो में क्या फ़ायदा है, डी शेप में क्या फ़ायदा है, कहाँ पे लेंटर डालना ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक उस्ताद को पता होना चाहिए। लेकिन उसको हक भी बनता है, आधे घंटे जो दिन में बैठते हो आप, 1 घंटा लंच के टाइम, आप लोगों को 1 घंटे का क्लास लेना चाहिए था। उस्ताद को तंग कर लो, उसको पूछो, नहीं सर, एक मिनट, तब जाके मेरी बात सुनो। 2 साल 10 साल के बाद आप जो बन के निकलोगे ना, आप लोहे के अंदर से सोना बन के निकलोगे। हाँ सही बात, मगर सर ये हमारी कमज़ोरी है। मैंने बोला उस्ताद कभी गलत नहीं करता। कब चलिए जब टीचर के पास बच्चा जाता है तो गलती आप ही लोगों की है ना, इसलिए आप ही लोग फंस जाते हैं फिर सोशल मीडिया पे। बात है, नहीं गलती तो हमारी ही है ना, गलती तो हमारी है, क्योंकि हम उस्ताद का कहना नहीं मानते। उस्ताद जो हमें कहता है हम वो नहीं करते। हम बातें करते हैं यार हमें इस छोड़ो यार, ये उस्ताद थोड़ी है, इसने मुझे क्या सिखाया, मगर लेकिन ये उस्ताद की गलती नहीं होती है, ये होती है स्टूडेंट की गलती। अच्छा, अगर आपका उस्ताद इस वीडियो को देखेगा तो आप क्या कहना चाहोगे उसको? उसके बारे में मेरा उस्ताद तो बढ़िया है, मैं सच बोल रहा हूँ, बढ़िया उस्ताद है। अगर उसने बोला कि आपने सारे जवाब क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया, क्या बोलोगे? उस वक्त तो वो फिर वो जाने और मैं जाने क्या होगा मेरे साथ होगी। चलो, जाहिद साहब का शुक्रिया। तो आप दोस्तों को भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी काम करोगे ना, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या है पीछे। जब तक लॉजिक पता नहीं होगा, ना तो सजेस्ट कर दो वो चीज़ काम, ना काम कर दो, तब तक पहले सीखो फिर करो।